Good morning, students. Today we are going to discuss our second chapter, which is relation and function. So here first we will talk about what is ordered pairs. So students, ordered pair, as it is clear from the word ordered and pair. If we are thinking about pairs, then two numbers, two digits comes in our mind. Pairs का मतलब होता है दो numbers. And अगर ordered का मतलब है तो ordered का मतलब एक definite pattern. So what is the definition of ordered pair? If we are going to write any two elements within a small bracket in a definite manner, then the pair is known as ordered pair. What is this? What is ordered pair? Ordered pair is a pair of objects written in a definite order. मतलब अगर एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स को हम एक डेफिनेट ऑर्डर्स में, एक डेफिनेट पैटर्न में लिख रहे हैं, तो जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑर्डर पेयर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ए कोमा बी, एक्स कोमा वाई, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी प्लेन्स, सॉरी एनी पॉइंट्स. किसी पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट को एक्स वाई प्लेन में लिखते हैं तो एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखते हैं. सो दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर्स. So what is ordered pair? Ordered pair is a pair of objects written in a definite order. Okay students? For example, a comma b, c comma d, 1 comma 2, x comma y, etc. So these are the examples of ordered pair. Here you can easily see all these points are. What is all these points? All these points are just like the coordinate of any point in xy plane. So here the first number, what? In ordered pair, the first number, this is denote, a is denote the first number here and b is denote the second number. Here c is the first element and d is the second element. Similarly here 1 is the first element and 2 is second element. Here x is first element and y is the second element. So this is the definition of ordered pair. Now what is Cartesian product? ऑर्डर्ड पेयर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का. तो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? इफ a and b are any two non-empty finite set, okay, if a and b are any two non-empty finite set, then what? Then the set of all possible ordered pairs, then the set of all possible ordered pairs a comma b, where the first element a belongs to the first set and the second element b belongs to the second set, is known as Cartesian product of a and b. So what is it? What is Cartesian product, students? If a and b are any two non-empty finite set, then the set of all possible ordered pairs a comma b such that a belongs to a, the first element belongs to first set, the first element belongs to first set and the second element belongs to second set, is known as Cartesian product. And what is it is denoted by? It is denoted by a cross b. A cross b is the Cartesian product of a and b. So here is the mathematical definition. That is, what is Cartesian product? A or b, if we are given any two non-empty finite set, then the Cartesian product of a cross b equal to a comma b such that where a belongs to the first element set a and b belongs to the second set b. Clear students? There are 2 points. Okay, first point is the Cartesian product never commutative. कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ यू आर गोइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए एंड बी, मतलब हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ ए की जगह बी आ जाए और बी की जगह ए आ जाए, तो जो उनका प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं होता है. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी नेवर बी इक्वल टू बी क्रॉस ए. फर्स्ट. सेकंड पॉइंट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज पी and number of element in set b is q, the number of element in Cartesian product a cross b is equal to pq. मीन्स कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट है और सेट बी में m एलिमेंट है, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स? वो हो जाएंगे आपके n इंटू m. इज इट क्लियर? सो कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक एग्जांपल से और डिटेल में समझते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, ये कोई सेट दिया हमें 1, 2 एंड 3. क्लियर स्टूडेंट्स? और एक सेट बी दे रखा हमें ए बी. क्लियर? सो व्हाट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? आप पिक्टोरियल फॉर्म बना दीजिए ऐसे, है ना? हियर इज ए एंड दिस इज बी. सो व्हाट इज ए? 1, 2, 3. ओके, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ बी? दैट इज ए एंड बी. Now we are going to perform the Cartesian product.
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो हम हर किसी के साथ रिलेट करते हैं। पहले हम वन का ए के साथ करेंगे, फिर वन का बी के साथ। तो क्या आ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स, 1, A and 1, B. Similar way, we are going to multiply 2 with A and with B. So क्या हो जाएंगे एलिमेंट्स, 2, A and 2, B. क्लियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली 3 के साथ हम कर लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 3 क्रॉस A and 3 क्रॉस 3, B. So this is the Cartesian product A cross B. Now we are going to find out the Cartesian product B cross A. Okay, what will be B cross A? What will be B cross A students? B cross A में एलिमेंट क्या हो जाएंगे, अब B पहले आ जाएगा, A बाद में आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, B पहले और A बाद में। तो ये हो जाएगा आपका सेट B, ये हो जाएगा सेट A। सेट B के एलिमेंट्स हैं A and B। सेट A में एलिमेंट्स है 1, 2 and 3। So now we are going to perform the Cartesian product B cross A. So A into 1, A into 2, A into 3. So what is the elements? A1, A2 and A3. Similar way, B1, B2 and B3. That is B1, B2 and B3. Okay. Now you can check either A cross B is equal to B cross A. No. Here you can check the first element of A cross B is 1, A, and here you can check the first element of B cross A Cartesian product is A, 1. 1, A, 1 is both the elements are equal? They are not equal. So the Cartesian product A cross B never be equal to Cartesian product B cross A. So this is the Cartesian product. Now coming to the next topic. What is the next topic? Sorry, one more thing I must want to tell you. यहाँ आप देख सकते हैं सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, देयर आर 3 एलिमेंट्स इन सेट ए, एंड सेट बी में देयर आर 2 एलिमेंट्स इन सेट बी। ओके, सेट ए में एलिमेंट्स थे 3, सेट बी में एलिमेंट्स है 2। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी? 3 multiplied by 2, that is 6. You can check 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, here you can also check 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so if we are having any two sets A and B such that set A contain n element, set B contain m element, so number of elements in Cartesian product A cross B will be n into m. Is it clear to all of you? Now we are going to the next topic, which is relation, and most important topic. So what is relation, students? Relation is the subset of Cartesian product A cross B. If we have given any two non-empty set A and B, then what is relation? Relation is nothing but the subset of Cartesian product A cross B. Definition, you can see, let A and B be any two sets, then a relation R from A to B is a subset of A cross B. Okay, let us, I am telling you with an help of example. Let set A be 1, 2 and 3. Okay, and set B is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. Okay students, so let any relation R is like that A comma B such that A minus B is greater than 0. Okay, what is relation? The relation is given such that R equal to A comma B such that A minus B will be greater than 0, where A is the element of first set A and B is the element of second set B. So what are the numbers relation R will contain? रिलेशन R में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे जो इस रिलेशन को कंटेन करेंगे? A माइनस बी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब A माइनस बी कब 0 होगा? जब ये जो वैल्यू A है इसकी A की वैल्यू B से क्या होगी स्टूडेंट्स? बड़ी होगी। जब A की वैल्यू B से बड़ी होगी तब A माइनस बी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। क्लियर है? अदरवाइज क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। तो अब ये A एलिमेंट्स कहां से कंटेन होते हैं? द एलिमेंट्स A बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट A and the elements B belong to the second set B. So what are the elements of A जो इस रिलेशन को कंटेन करेंगे? अगर मैं यहाँ 1 लूंगा तो यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा, लेकिन 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, और 0 से हमें क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। सो मैं स्टार्ट करूंगा कहां से? 2,1 से। ओके, 2,1 एक आ जाएगा, और 2,2 आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि 2 माइनस 2 क्या दे देगा? 0। सो सेकेंड क्या हो जाएगा मेरा? 3,1। ओके स्टूडेंट्स, और
3,2। ठीक, तो रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आए स्टूडेंट? 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट आ गए रिलेशन में। व्हाट अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B? अगर मैं A क्रॉस B की बात करूं तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B में कितने हैं? 5। तो टोटल कितने आएंगे? 5 3 जा 15 आने चाहिए ना। देख लीजिए 15 कैसे आएंगे। ये सेट A, ये सेट B, 1 2 3 एंड 1 2 3 4 एंड 5। ओके, नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? 1,1, इस 1 का इन सबके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सिमिलरली 2 का सबके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सिमिलरली 3 का सबके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कैसे? 1,1 1 2 1 3 1 4 1 5। 1 के 5 आ गए, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5। okay, so we are going to write here A cross B is equal to 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स? नेक्स्ट 2 के साथ होगा ऐसी, 2,1 2 के साथ मैपिंग बनेगी, 2,2 2,3 2,4 2,5। ओके, सो एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? 2,1 2,2 2,3 2,4 एंड 2,5। ओके, सिमिलर वे 3 के साथ 3,1 3,2 3,3 3,4 एंड 3,5। ओके, 3,1 3,2 3,3 3,4 and 3,5। now you can check students, these 3 elements belongs to here or not? 2,1 you can easily check 2,1 here. okay, similarly 3,1 here and 3,2 here. so all 3 elements which relation contain is coming here. so what is relation? Relation is the subset of A cross B. what is relation beta? Relation is the subset of Cartesian product A cross B. this is the definition of relation. what is relation? The relation R between any two set A and B is nothing but the subset of Cartesian product A cross B. क्या होता है रिलेशन? रिलेशन R कोई दो सेट्स A और B के बीच में अगर डिफाइन हो रहा है तो रिलेशन R क्या होगा स्टूडेंट? सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। ठीक है, और हम इसे कैसे लिखते हैं? हम इसको राइट डाउन करते हैं स्टूडेंट्स A R B से। कैसे डिनोट करते हैं इसको स्टूडेंट्स? इसको हम डिनोट करते हैं A R B, यानी इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट A is related to the elements of set B. okay, now number of element कितने हो जाएंगे किसी रिलेशन में स्टूडेंट्स? अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशन की बात करूं, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रिलेशन, देखिए स्टूडेंट, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जो है सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। क्लियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन होता है सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। अब मान लीजिए सेट A में आपके पास है P एलिमेंट और सेट B में है आपके पास Q एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सेट A में P एलिमेंट्स है, P एलिमेंट, और सेट B में कितने हैं? Q एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो गया? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? PQ एलिमेंट्स हो जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट AB में कितने हो जाएंगे? PQ एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो अब रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R। रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? हाउ मेनी रिलेशन इट कैन हैव? सो कैसे पता चलेगा? देखिए रिलेशन क्या है? सबसेट है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में एलिमेंट्स कितने हैं? PQ। A क्रॉस B में एलिमेंट कितने हैं स्टूडेंट्स? PQ एलिमेंट्स हैं। तो PQ एलिमेंट्स के सबसेट कितने बनेंगे? PQ एलिमेंट्स के सबसेट बनेंगे 2 raised to the power PQ। As earlier I was told you, if any set containing n element, then its number of subset is 2 raised to the power n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने बनेंगे पॉसिबल? 2 raised to the power n बनेंगे। सो हियर अगर A में P एलिमेंट है और सेट B में Q एलिमेंट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे?
देयर आर PQ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, सो नंबर ऑफ एलिमेंट रिलेशन में कितने हो जाएंगे, देयर आर 2 raised to the power PQ, बिकॉज R क्या है, इसका सबसेट है, ओके। और एवरी सबसेट, अगर सबसेट है तो कितने कंटेन करेगा, 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, जिस सेट का वो सबसेट है। तो यहाँ A क्रॉस B का सबसेट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है, PQ, तो R जो इसका सबसेट है उसमें कितने हो जाएंगे, 2 raised to the power PQ। It is clear? Now taking one example, if A containing 2 elements, suppose A and B, and set B containing 3 element 1 2 3, okay, so number of elements in R, तो रिलेशन में कितने एलिमेंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने हो जाएंगे, 2 into 3 that is 6, ओके। So number of element in R is equal to कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 raised to the power 6, okay। Okay, now we are going to our next topic, which is domain and range of any relation. What is domain and range of any relation? Okay, so domain of R, okay, what is domain of R? If R is a relation A comma B, C comma D, okay, E comma F, कोई रिलेशन है, R is a relation जिसमें 3 एलिमेंट है, A comma B, C comma D, E comma F, ओके, ठीक। सो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज द सेट ऑफ all first elements of ordered pair of R, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, the set of all second elements of ordered pair R, okay, ordered pair R. What does it mean mathematically? Domain of R, D of R is equal to A such that A belongs to A, and range of R equal to B such that B belongs to B, okay, where R contain, R is A comma B such that A belongs to A and B belongs to B, okay। तो आप ध्यान से समझिए डोमेन और रेंज होता क्या है। मान लीजिए कि R कोई एक सेट दिया हुआ है, क्लियर स्टूडेंट्स, R क्या है, रिलेशन का सेट है which contain ordered elements, okay, which contain ordered elements। So what is domain? Domain is the set of all first elements. Domain is what? Domain is the set of all set of all first element of ordered pair which contain R. जो R में कंटेन हो रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, उनका जो पहला वाला एलिमेंट्स है उनका सेट जो होगा वो डोमेन होगा। और रेंज क्या होगा स्टूडेंट्स, रेंज जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको गिवन है, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, उन ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, रेंज हो जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। सपोज रिलेशन के एलिमेंट कुछ ऐसे दिए हैं 1 1 2 2 1 2 1 3, ओके। सो डोमेन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स का, डोमेन मैंने क्या बताया, डोमेन मैंने बताया सेट ऑफ और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कंटेनिंग इन आर। सो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 और 2 1 1, तो रिपीटेशन तो अलाउड होता नहीं है, तो 1 2। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी स्टूडेंट्स, रेंज सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट 1 2 2 और 3, यानी 1 2 और 3, क्लियर स्टूडेंट्स। डोमेन, व्हाट इज डोमेन, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर व्हिच कंटेन्स इन आर, एंड व्हाट इज रेंज, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कंटेनिंग इन आर, क्लियर है स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लीजिए एक रिलेशन दिया है आपको, ठीक है,
रिलेशन कैसा दिया है, रिलेशन कुछ ऐसा दिया है, सपोज a, b, c, d, e, f। ओके, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, डोमेन क्या है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर कंटेनिंग इन आर। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से दिए हैं, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए और सी और ई, ये डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगी इस रिलेशन की, रेंज ऑफ आर, इस रिलेशन की रेंज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रेंज इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। व्हाट इज रेंज, रेंज इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ आर। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट लिखे हुए हैं इनका जो सेट है ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका ये रेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो ये हमारा पहला टॉपिक था रिलेशन। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस व्हाट इज फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके ना, सो आपको करना क्या है, आपने जितनी भी चीजें बताई हैं इनको बुक से पढ़नी है एंड देन गो थ्रू द एक्सरसाइज एंड एग्जांपल एंड सॉल्व देम। एंड इफ यू अराइज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस, you can ask me. Okay students, have a nice day.